بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فن اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا عنوان ہے دنیا کا سب سے بڑا ملک روس۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے روس کی جادوئی اور پرہیبت سرزمین پر۔ جانیں گے کیسے روس دنیا کا سب سے بڑا ملک بنا، کیسے اس کی فوج اتنی طاقتور ہے، اور ولادیمیر پوٹن کا راز کیا ہے۔ سوویت یونین کی تاریخ، نیوکلیئر ہتھیار اور دنیا کے سب سے سرد علاقے کی زندگی کیسی ہے، گیس اور تیل کے ذخائر اور روس کے 10 عجیب و غریب قوانین، سب کچھ ڈاکومنٹری میں۔ اگر آپ کو تاریخ، سیاست اور عالمی طاقتوں کی حقیقت میں دلچسپی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ دیکھیں اور جانیں وہ سب کچھ جو عام طور پر چھپا رہتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہماری طاقت ہے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا ملک روس۔ روس ایک سرزمین جہاں کبھی وائکنگز کے گھوڑے دوڑا کرتے تھے، جہاں شاہی تاج اور سرخ انقلاب نے جنم لیا، اور جہاں آج ولادیمیر پوٹن دنیا کو چیلنج کر رہا ہے۔ آئیے چلتے ہیں روس 1000 سالہ سفر پر۔ طاقت، بغاوت، خون اور عظمت کی داستان۔ کیون رس۔ روس کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے 9ویں صدی میں، جب اسکینڈونیویا سے آئے وائکنگز نے کیف، جو کہ آج کا یوکرین ہے، آج کے یوکرین کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ کیون رس سے نکلا روس، اور یہی سلطنت کہلائی۔ 988 عیسوی میں پرنس ولادیمیر نے عیسائیت کو ریاستی مذہب بنایا، اور یوں روس کو مذہبی شناخت ملی۔ 1447 سے 1584 تک پہلا بادشاہ جس نے اپنے آپ کو ٹیسار کہلایا، ایوان چہارم ذہین بھی تھا اور سخت گیر بھی۔ اس نے روس کو وسعت دی، لیکن دشمنوں کو ظالمانہ انداز میں ختم کیا۔ 1672 سے لے کر 1725 تک پیٹر دا گریٹ، روس کا معمار، اس نے روسی بحریہ بنائی، یورپ سے تعلیم اور سائنس لایا، اور سینٹ پیٹرز برگ جیسے شہر آباد کیے۔ 1762 سے لے کر 1796 تک کیتھرین دا گریٹ۔ کیتھرین دا گریٹ ایک جرمن شہزادی جو روس کی ملکہ بنی۔ وہ علم، فن اور حکمت کی علامت بنی اور روس کی سلطنت کو اور وسعت دی۔ 1812 میں نپولین بوناپارٹ، فرانس کا بادشاہ اور تاریخ کا سب سے کامیاب فوجی جرنیل، جو کہ 1769 کو پیدا ہوا اور 1821 میں فوت ہوا، یورپ کے بیشتر ممالک فتح کیے۔ 1812 میں روس پر حملہ کیا، مگر شدید سردی اور روسی حکمت عملی نے اسے شکست دی۔ آخر کار شکست کھا کر جلا وطن ہوا۔ 1812 میں نپولین بوناپارٹ کی سلطنت تقریباً آدھے یورپ پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا مقصد تھا روس کو نیچے جھکانے کا، اور اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے 1812 میں اس نے روس پر حملہ کر دیا۔ نپولین نے تقریباً 6 لاکھ فوجیوں کے ساتھ روس کا رخ کیا۔ ابتدائی کامیابی کے بعد روسی افواج نے پیچھے ہٹنے کی حکمت عملی اپنائی، اور یہ ایک روسی چال تھی۔ روسی فوج نے راستے میں آتے تمام شہروں کو خود تباہ کر دیا، یعنی نپولین کی فوج کو کھانا، رہائش اور سپلائی کچھ نہ ملا۔ سب سے اہم، ماسکو کو بھی جلا دیا۔ جیسے ہی روس کی شدید سردی آئی، منفی درجہ حرارت، نپولین کی فوج جم گئی، بھوک سے مری اور واپس پلٹنے لگی۔ انجام، صرف 50,000 کے قریب فوجی زندہ واپس فرانس پہنچے، یعنی سردی کا جنرل کہا جاتا ہے اسے۔ اس کو یورپ کا فاتح لیکن سردی کا شکار جنرل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے 1894 سے لے کر 1917 تک کا دور، جس کو آخری زار کا دور بھی کہا جاتا ہے، نکولس دوم۔ سن 1900 میں زار نکولس کے دور میں عوام غریب، بھوکی اور غلاموں جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ ورلڈ وار 1 کے بعد روس کی شکست اور بھوک نے عوام کو بغاوت کرنے پر مجبور کر دیا۔ فروری 1917 میں عوام نے اور فوج نے زار کے خلاف بغاوت کر دی۔ زار نکولس دوم نے تخت چھوڑا، ایک عبوری حکومت قائم ہوئی، لیکن وہ بھی ناکام رہی۔ 1917 کے انقلاب میں عوام نے بادشاہت کا خاتمہ کر دیا اور اس کی پوری فیملی کو قتل کر دیا۔ 1917 سے 1922 کا دور، بلشوک انقلاب اور سوویت یونین کا آغاز۔ 1917 روس کی تاریخ کا دھماکہ خیز موڑ تھا۔ عوام بھوک، جنگ اور غلامی سے تنگ آ چکے تھے۔ یہاں سے آیا بلشوک انقلاب، اور منظر پر آیا ایک نیا لیڈر، ولادیمیر لینن۔
बादशाहत ख़त्म, सरमायादारी दफन और नई रियासत वजूद में आई जिसको सोवियत यूनियन कहा जाता है, USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। 1917 से लेकर 1924 तक लेनिन का दौर इनकलाब का मामार, मगर ज़्यादा वक्त नहीं मिला। 1924 से 1953 तक जोसेफ स्टालिन, सबसे सख्त गिर हुक्मरान, लाखों लोग गुलाग्स में मारे गए, मगर दूसरी जंग अजीम में रूस को फतह दिलाई और एटमी ताकत बनाया। 1941 में जर्मनी के बादशाह हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया। हिटलर से कौन वाकिफ़ नहीं है। जर्मनी का डिक्टेटर, नाज़ी पार्टी का सरबराह, 1999 में पैदा हुआ, 1945 में खुदकुशी की, वर्ल्ड वार 2 का आगाज़ किया, मिलियन यहूदियों को कत्ल किया जिसको होलोकॉस्ट कहा जाता है। 1941 में रूस पर हमला किया, स्टालिनग्राड में ज़बरदस्त शिकस्त हुई, आखिर में बर्लिन में खुदकुशी कर ली। हिटलर ने 22 जून 1941 को सोवियत यूनियन पर हमला किया जिसको ऑपरेशन बारबरोसा कहा जाता है। तकरीबन 30 लाख जर्मन फौजी और हज़ारों टैंक्स, तैयारे और बंदूकों के साथ। उसका मकसद मॉस्को, लेनिनग्राड और स्टालिनग्राड को कब्ज़े में लेकर सोवियत यूनियन को तबाह करना था। हिटलर की फ़ौज ने इब्तदाई चंद महीनों में हज़ारों मील का इलाका फतह कर लिया। रूसी फ़ौज पीछे हटने लगी, मगर फिर वही चाल। रूसी फ़ौज ने शहर छोड़ते वक्त तमाम चीज़ें जला दी। हिटलर की फ़ौज भूख और सर्दी में फंस गई। फिर आया जनरल विंटर, सख्त रूसी सर्दी, -30 से 40 डिग्री तक। जर्मन फ़ौज के पास गर्म कपड़े, ईंधन और खुराक की किल्लत। लाखों फ़ौजी जम गए या बीमार होकर मर गए। जर्मन को तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त, तकरीबन 10 लाख जर्मन फ़ौजी मारे गए और कुछ गिरफ्तार हो गए। अंजाम क्या हुआ? 1945 में रूसी फ़ौज ने बर्लिन, जर्मनी का दारुल हुकूमत तक पहुंचकर हिटलर को शिकस्त दी। वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो गया और हिटलर ने खुदकुशी कर ली। नेपोलियन बोनापार्ट 1812 6 लाख फ़ौज के साथ हमला किया था, इबरतनाक शिकस्त हुई। हिटलर ने 1941 में हमला किया और 3 मिलियन फ़ौज, जिसको सर्दी की वजह से पीछे हटना पड़ा और ज़बरदस्त किस्म की शिकस्त हुई उसको। इसके बाद शुरू होता है 1953 से लेकर 1964 खलाई दौर का आगाज़। पहला सैटेलाइट स्पुतनिक, पहला इंसान यूरी गागरिन जो कि खला में भेजा गया। उसके बाद 1985 से 1991 तक मिखाइल गोरबाचेव, आज़ादी की कोशिश की मगर निज़ाम बिखर गया। 1991 में सोवियत यूनियन टूटा, 15 नई रियासतें वजूद में आईं। सोवियत यूनियन और अफ़गानिस्तान, वो जंग जिसने सल्तनत तोड़ दी। 1979 से पहले अफ़गानिस्तान एक गरीब मगर खुद मुख्तार मुल्क था। 1978 में एक कम्युनिस्ट हिमायत याफ्ता हुकूमत ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया जिसका झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ था। मुल्क में बदअमनी, बगावत और जहाद की फ़िज़ा बनने लगी। दिसंबर 1979 में सोवियत यूनियन ने हमला कर दिया। सोवियत यूनियन की फ़ौज ने अफ़गानिस्तान में दाखिल होकर कम्युनिस्ट हुकूमत को बचाने की कोशिश की। दुनिया की दूसरी बड़ी फ़ौज ने एक पसमानदा मुल्क पर चढ़ाई कर दी, मगर उन्हें अंदाज़ा न था कि यह जंग उनके वजूद के लिए कब्र बन जाएगी। 1979 से लेकर 1989 तक जंग की हकीकत सोवियत यूनियन की फ़ौज 1,20,000 से ज़ायद थी। अफ़गान मुजाहिदीन देहाती, मजहबी और जज्बे से भरपूर थे। इसकी मज़ामत में अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया। नतीजा पहाड़, ज़मीन, आवाम सब दुश्मन बन गए। 1989 रूस की वापसी शर्मिंदगी के साथ 10 साल खून रेजी, 15,000 रूसी फ़ौजी हलाक हुए, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, अवाम में नफ़रत, फ़ौजी शिकस्त, ज़हनी शिकस्त और आखिरकार सोवियत यूनियन को निकलना पड़ा। यहाँ से सोवियत यूनियन का ज़वाल शुरू हुआ। जंगी खर्च, मईशत तबाह, फ़ौजी शर्मिंदगी, अवाम का एतमाद ख़त्म, आलमी सतह पर बदनामी, सर्द जंग में कमज़ोरी, कौम परस्ती उभरी, अंदरूनी रियासतें बगावत करने लगीं। आखिरकार 1991 में सोवियत यूनियन टूट फूट का शिकार हो गई। अफ़गानिस्तान वो कब्रिस्तान है जहाँ ना सिर्फ सल्तनतें दफन होती हैं बल्कि गरूर, ताकत और नज़रियात भी खाक में मिल जाते हैं। सोवियत यूनियन ने जंग जीतने के लिए हमला किया था, मगर उस जंग ने उसे तारीखी धूल चटा दी और इससे सोवियत यूनियन का ज़वाल शुरू हुआ। 1991 से 1999 तक बोरिस येल्सिन नए रूस का पहला सदर बना, मगर करप्शन, महंगाई और कमज़ोरी का दौर रहा।
सन 2000 से लेकर अब तक व्लादिमीर पुतिन KGB का एक साबिक अफसर जिसने रूस को मजबूत करने की कसम खाई। पुतिन के दौर में फौजी ताकत में इजाफा हुआ, यूक्रेन से जंग, मगरब से टकराव, मीडिया पर कंट्रोल और आलमी ताकत की वापसी। रूस एक ऐसा मुल्क जो सदियों से दुश्मन के लिए कब्रिस्तान और अपने शहरियों के लिए एक आजमाइश रहा है। इसकी ज़मीन बर्फ़ से ढकी हो या खून से, मगर उसकी रूह कभी नहीं झुकी। वाइकिंग से पुतिन तक का सफ़र, रूस एक तारीख नहीं, एक पहेली है। 1991 में जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुई तो उस वक्त 15 रियासतें आज़ाद हुईं। यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आर्मीनिया, आज़रबाईजान, बेलारूस। बैरूनी तौर पर अमेरिका, नेटो और मगरब ने सर्द जंग में मुसलसल दबाव रखा। मगरबी मीडिया ने अंदरूनी अवामी जज्बात को उभारा। एक दिन में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत टूट गई। रूस उसका जानशीन मुल्क बना। आज तक सोवियत यूनियन का ज़वाल रूसी सियासत और तारीख़ का हसास मौजू है। तो चले बात करते हैं आज के रूस की। यह है वो सरजमीन जहां बर्फ़ के नीचे ख़जाने छुपे हैं, जहां एक तरफ ताकतवर फ़ौज है और दूसरी तरफ अदब, फ़लसफ़ा और खला की वसातें। यह है दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रूस। आज हम इस 2 एकड़ मुल्क की तारीख़, राज, जंगे, साइंस और ऐसे इंकशाफात जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। रूस रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका रकबा तकरीबन 1,70,00,000 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। यहाँ 11 टाइम जोन्स हैं, मतलब ये कि एक तरफ दिन निकलता है तो दूसरी तरफ रात होती है। रूस का तकरीबन 77% हिस्सा एशिया में है, जबकि 23% हिस्सा यूरोप में है। सबसे बड़ी इलाकाई तकसीम साइबेरिया, जहां बर्फ़, जंगलात और खामोशी ही ज़िंदगी है। 2024 के मुताबिक रूस की आबादी तकरीबन 14 करोड़ है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर 80% से ज़ायद आबादी सिर्फ यूरोपीय रूस में बसती है, जबकि साइबेरिया और मशरक़ी रूस, जो कि रकबे का 75% बनता है, उसमें सिर्फ 20% आबादी है। इसका दारुल हुकूमत मॉस्को है, सियासी और तिजारती मरकज़ है। इसकी आबादी तकरीबन 1.2 करोड़ है। सेंट पीटर्सबर्ग तारीख़ी, सकाफ़ती और बंदरगाही शहर है। इसकी आबादी तकरीबन 50 लाख अफराद है। नोवोसिबिर्स्क, इसकी आबादी तकरीबन 15 लाख है। साइबेरिया का सबसे बड़ा शहर है। यकातेरिनबर्ग 14 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। यूराल खिते का अहम सनती शहर है। काजान तातारिस्तान की मुस्लिम अक्सरीती रियासत, जिसकी आबादी तकरीबन 12 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा गैस बरामद करने वाला मुल्क है। तेल, कोयला, सोना, हीरो और लकड़ी की वसी ज़खायर मौजूद हैं। ब्रिक्स इत्तेहाद का अहम रुकन है। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका यूरोप को गैस सप्लाई करने की वजह से रूस एक तवानाई का सुपर पावर भी कहलाता है। इसकी GDP तकरीबन 1.9 ट्रिलियन डॉलर है। इसकी कौमी ज़ुबान रूसी है। मजहबी अक्सरियत रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। आपको बताता हूँ रूस के अजीब व गरीब मालूमात। रूस में बच्चों को शतरंज सिखाई जाती है। फ्रोज़न मामोथ्स साइबेरिया में आज भी बर्फ़ में जमी हुई हालत में मिलते हैं। ये एक पुरानी नस्ल के हाथी होते हैं। फ्रोज़न मामोथ्स बर्फ़ में जमी हुई कदीम हाथियों की लाशें। ज़्यादातर साइबेरिया के इलाकों में ख़ास तौर पर ये मामूथ्स हज़ारों साल पहले, जो कि 2 एकल हाथी थे, बर्फ़ में जम गए थे और आज तक महफूज हालत में मिलते हैं। इनके DNA, बाल, दांत और गोश्त तक महफूज होते हैं। साइंसदान इनका DNA निकाल कर दोबारा ज़िंदा करने के तजुर्बात भी कर रहे हैं। रूस में एक झील है जिसे आई ऑफ अर्थ कहा जाता है, जो कि रंग बदलती है। लेक बैकल दुनिया की सबसे गहरी झील, ये रूस में वाक़या है। रूस में एक ऐसा शहर है जो साल के आधे से ज़्यादा दिनों तक अंधेरे में रहता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जिसकी लंबाई तकरीबन 9,299 किलोमीटर है। रूस में पालतू रीछ रखने का रिवाज है, ख़ास तौर पर देहाती इलाकों में। रूस में गंदी गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। EMO बच्चों के लिए लिबास पहनना ममनू है। मेटल म्यूज़िक के कुछ फॉर्म्स पर पाबंदी है। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल 2 पासपोर्ट्स रखना कानूनी जुर्म है। सड़क पर गालम गलोच करना जुर्म है। सरकारी इमारतों की तस्वीर लेना मना है। नाजी अलामत का इस्तेमाल सख्त जुर्म है। पुराने फ़ोन्स को रजिस्टर्ड करवाना लाजमी है। पालतू जानवरों के लिए लाइसेंस ज़रूरी है।
सोशल मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ मवाद, कैद की सज़ा है। हालिया सियासत और पाबंदियाँ। यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका और यूरोप ने रूस पर सख्त पाबंदियाँ लगाई हैं, मगर रूस ने खुद को चीन और मशरक़ी ममालिक से जोड़ लिया है। रूबल करेंसी में इस्तेहकाम और डॉलर के बगैर तिजारत पर जोर दिया है। रूस का ज़्यादा हिस्सा साइबेरिया कहलाता है, जो कुदरती वसाइल, बर्फ़ और तन्हाई से भरा हुआ है। रूस एक दुनिया की सबसे तवील सरहद वाले ममालिक में से एक है। 16 ममालिक से इसकी सरहद मिलती है, जिनमें चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान और नॉर्वे शामिल हैं। रूस का दारुल हुकूमत मॉस्को रूस का सबसे बड़ा और अहम शहर है। जदीद इमारतें, कदीम किले और दुनिया की मसरूफ़ तरीन मेट्रो सर्विसेज इसमें से एक हैं। करेंसी रूबल है। फौजी ताकत और न्यूक्लियर हथियार। अमेरिका के बाद रूस दुनिया की दूसरी बड़ी फौजी ताकत है। दुनिया में सबसे ज़्यादा एटमी हथियार, अंदाज़न तकरीबन 6000 से ज़ायद, दुनिया भर में खौफ की अलामत समझे जाते हैं। व्लादिमीर पुतिन सन 2000 से इक़्तिदार में हैं। सदर और वज़ीर-ए-आज़म दोनों रह चुके हैं। ये KGB रूस की खुफिया एजेंसी के साबिक अफसर हैं। इनकी ताकत, सख्त फैसले और मगरब मुखालिफ पॉलिसीज़ ने इन्हें दुनिया के मतनाज़ा तरीन शख्सियात में शामिल कर दिया है। पुतिन के बारे में कुछ हैरान कुन बातें। मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हैं, कई ज़ुबानें जानते हैं, जंगली जानवरों के साथ शूटिंग और मुहिमात के शौकीन हैं। 1867 में रूस ने अलास्का को सिर्फ $72 लाख में अमेरिका को बेच दिया था। रूस ने अलास्का अमेरिका को क्यों बेचा? रूस ने 1867 में अलास्का सिर्फ $72 लाख में अमेरिका को फ़रोख्त कर दिया था, जो आज के दौर में तकरीबन $140 बिलियन के बराबर है। ये फ़ैसला एक मामूली सा नहीं बल्कि एक तारीखी और स्ट्रेटजिक फ़ैसला था। आइए इसकी वजूहात और तफसील में समझते हैं। बेचने की वजूहात में ये दूर दराज और नाकाबिल रसाई इलाका था। अलास्का रूस के बाकी इलाकों से बहुत दूर था। बर्फ़बारी, मौसम की शिद्दत और ज़राए आमदो रफ्त की कमी की वजह से इंतज़ामी तौर पर संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। रूस उस वक्त माली बहरान का शिकार था। क्रीमिया की जंग के बाद रूसी खजाना खाली हो चुका था। हुकूमत को फौरी तौर पर पैसों की ज़रूरत थी। रूस को डर था कि अगर कोई जंग हुई तो बरतानिया अलास्का पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि कनाडा बरतानवी कॉलोनी था। रूस ने सोचा कि बजाय इसके कि मुफ्त में हाथ से जाए, इसे बेच देना बेहतर होगा। उस वक्त अमेरिका और रूस के ताल्लुकात अच्छे थे। रूस ने अमेरिका को एक काबिल एतमाद ख़रीदार समझा। अमेरिका को फ़रोख्त करके रूस ने बरतानिया को एक स्ट्रेटजिक झटका दिया। 30 मार्च 1867 में यह मुआहिदा हुआ, तकरीबन 2 सेंट फ़ी एकड़। रूस की तरफ से मुआहिदा करने वाला TSAR अलेक्जेंडर II और अमेरिका की तरफ से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम स्वार्ड था। इस मुआहिदे को उस वक्त अमेरिकी आवाम ने स्वार्ड की बेवकूफ़ी कहा, क्योंकि उन्हें अलास्का बेकार और फजूल लगा था। बाद में अलास्का में सोने, तेल और गैस जैसे अजीम कुदरती ज़खायर दरियाफ्त हुए। आज अलास्का अमेरिका की स्ट्रेटजिक और इक़्तिसादी अहमियत का हामिल सबसे अहम इलाका है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे सर्द तरीन इलाके की। ओयमयाकून और यकूतिया दुनिया के सबसे ठंडे तरीन इलाकों में शुमार होते हैं, जिनका दर्जा है तकरीबन 67 डिग्री। ईरान वाली वीडियो में आपको बताया था दुनिया का सबसे गर्म तरीन इलाका लूत डेजर्ट, जो कि ईरान में वाक़ है। आज हम बात करेंगे ठंडे तरीन इलाके के। दुनिया का ठंडा तरीन इलाका जो कि रशिया साइबेरिया में वाक़ है। ओयमयाकून रूस का इलाका है, दुनिया का सबसे सर्द तरीन इलाका है। साइबेरिया के दूर दराज इलाकों में वाक़ है। यहाँ के कुछ ख़ास बातें आपको बताता हूँ। दुनिया का सबसे कम दर्जा हरारत फरवरी 1933 में -71.2 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है, जो किसी भी मुस्तकिल आबाद जगह का सबसे कम तरीन दर्जा हरारत है। सर्दियों के दौरान औसत दर्जा हरारत -50 डिग्री तक रहता है। यहाँ ज़िंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल है। गाड़ियों को गर्म रखने के लिए उन्हें मुसलसल चलाया जाता है। गाड़ियों को बंद नहीं किया जा सकता, वरना इंजन जम जाता है, या फिर इनको हीटर वाले रूम्स में रखा जाता है। ज़मीन इतनी सर्द होती है कि कब्रें खोदने के लिए पहले आग जलाकर ज़मीन को गर्म किया जाता है। मोबाइल फ़ोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात जमकर बंद हो जाते हैं। सर्दियों में दिन की रोशनी में सिर्फ 3 घंटे तक सूरज की रोशनी रहती है।
जबकि गर्मियों में 21 घंटे तक सूरज की रोशनी रहती है। नंगे हाथों से किसी दांत को छू लिया जाए तो वो जिल्द को चिपक सकती है, जिससे फॉरेस्ट बाइट का शदीद खतरा रहता है। मुकामी लोग गोश्त और मछली पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं क्योंकि सख्त मौसम में सब्जियां उगाना नामुमकिन है। मुंजबिद मछली को चाकू से काट कर कच्चा खाया जाता है, जो एक मुकामी डिश है। वुडका को ना सिर्फ पिया जाता है बल्कि जिस्म को गर्म रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सयाहों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ वर्कर्स दिया जाता है, जो ये साबित करता है कि ये उन्होंने ओयमयाकून की इंतहाई सर्दी को बर्दाश्त किया है। यहाँ डेड मास्क फेस्टिवल मनाया जाता है, जहाँ लोग बर्फानी मुजस्मे बनाते हैं। ओयमयाकून का मतलब गैर मुंजबिद पानी है, लेकिन यहाँ दरियाओं के 9 महीने तक जमे रहने के बावजूद ये नाम क्यों दिया गया? दरअसल ये नाम एक गर्म चश्मे की वजह से पड़ा, जो हमेशा गर्म रहता है। ओयमयाकून दुनिया के चंद इंतहाई तरीन जगहों में से एक है जहाँ ज़िंदगी एक चैलेंज है, मगर मुकामी लोग इसे अपने अंदाज में जी रहे हैं। अगर आपको इंतहाई सर्दी का तजर्बा करना है तो ये जगह आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। रूस एक ऐसा मुल्क जो बज़ाहिर बर्फ़ में डूबा हुआ मगर उसके अंदर एक दहकता हुआ लावा है, ताकत का, तारीख का, कुर्बानियों का और खामोशी में लिपटी हुई एक ताड़ का। वाइकिंग्स के पथरीले कदमों से लेकर शाही ताज के सुनहरी चमक तक, बाल्शविक इनकलाब की सुर्ख लहर से लेकर स्टालिन के फौलादी शिकंजे तक, सोवियत यूनियन के झंडे से उड़ती अजमत और आज के दौर में पुतिन के ज़ेरे साया एक बार फिर उभरती ताकत तक, ये सब है रूस की कहानी। ये वो सरजमीन है जहाँ सर्दी फौज को खा जाती है और जज्बा दुश्मन को झुका देता है। यहाँ के शहरों में आधे साल तक सूरज गायब रहता है, मगर रूसी कौम का हौसला रोशनी की मानद जगमगाता रहता है। सोवियत यूनियन बिखरा, माजी की दीवारें गिरी, मगर रूस झुका नहीं, क्योंकि रूस सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक मिजाज है, एक सोच है, एक ताकत है। तो है देखने वाले, अगर तुमने डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ के हर लम्हे को महसूस किया तो जान लो तुमने सिर्फ रूस को नहीं, इंसानी तारीख के एक ताकतवर, तल्ख मगर शानदार बाप को पढ़ा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।